Good morning, dear students. Students, in the previous class, we have already talked about the central nervous system and the peripheral nervous system. We have talked in brief that peripheral nervous system was further divided into the somatic and the autonomic nervous system, which was autonomic nervous system further divided into sympathetic and parasympathetic nervous system. So after discussing about in brief about the nervous system, we have also discussed about the structure of the nerve cell. एक नर्व सेल में कौन से पार्ट्स होते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ डिफरेंट रीजन्स इन द नर्व सेल, दैट वाज डिस्कस्ड बाय अस इन द प्रीवियस क्लास. Now we are moving on to a very important topic in this chapter, and that is generation and the conduction of the nerve impulse. स्टूडेंट्स, नर्व इम्पल्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो शायद आपने कई बार सुना भी होगा, दैट from our brain there is a message which passes to the different organs of our body to do their work, right? For example, अगर आपको कुछ बोलना है तो इसके लिए जो स्पीच के लिए जो टर्मिनोलॉजीज के लिए जो सिग्नल मिलने वाला है, that is being obtained from the message or the impulse which is obtained from the nervous system, that is your brain or your spinal cord, to your particular muscles of your tongue. So what I am trying to say is that every activity in our body depends upon this impulse which is being received. And therefore, if the impulse is not received, that particular function is not going to occur. But when we use the word impulse again and again, what do we actually mean by a nerve impulse? So we are going to begin with the meaning of nerve impulse. So nerve impulse, the nerve impulse is a wave of depolarization that runs across a nerve cell membrane. What is a nerve impulse? Nerve impulse को कहा जाता है एक वेव है, a wave of depolarization. अब इसके लिए ये भी समझना पड़ेगा that what is the meaning of depolarization. But an impulse runs through what? It is going to travel from one nerve cell to the another. मतलब एक nerve cell की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके दूसरे नर्व सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये नर्व इम्पल्स जो है वो कंडक्ट होने वाला है. However, the impulse conduction is so rapid process that within a millisecond there will be hundreds of impulses that are going to run along that nerve cell. So conduction of the nerve impulse is going to be very rapid, right? So here it is a wave of depolarization that runs across the nerve cell membrane, right? It is conducted from one nerve cell to another through or you can say across a synapse, or from one neuron to other effector organ. कहाँ पे कंडक्ट होने वाली है ये इम्पल्स? इम्पल्स तो है, इम्पल्स कंडक्ट होने वाली है, ट्रैवल होने वाली है. तो ट्रैवल कहाँ पे होने वाली है? तो आइदर इट विल ट्रैवल फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर. ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से एक नर्व सेल स्टार्ट हो रहा है, द अनदर नर्व सेल, द थर्ड नर्व सेल, राइट? सो इट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर. तो एक नर्व सेल और दूसरे नर्व सेल के बीच में जो गैप होती है, जो फिजिकल डिस्टेंस होता है, उसे क्या कहा जाता है? साइनैप्स कहा जाता है. तो आइदर इट विल ट्रैवल अक्रॉस द साइनैप्स, or you can say it will travel from one neuron to the effector organ. यहाँ पे effector organ मतलब हर बार जरूरी नहीं है कि इम्पल्स जो लास्ट न्यूरॉन है वहां से कहाँ जाएगा?
to the muscle or to a gland or to a organ, right? तो कोई मसल या कोई ऑर्गन पे जब ये इम्पल्स पहुंचता है तो उसे क्या कहा जाता है? इफेक्टर ऑर्गन। ये इफेक्टर ऑर्गन कोई भी हो सकता है, मसल हो सकता है, ग्लैंड हो सकता है, ठीक है। सो हियर 2 points I have mentioned. The first is कि एक इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स एक वेव है, एक वेव डीपोलराइजेशन की वेव है which will be traveling from one nerve cell to another through the plasma membrane of that nerve cell. And second, an impulse will be conducted from one nerve cell to another nerve cell or from a nerve cell to an effector organ, right? तो अब हम इस कंसेप्ट को समझते हैं, हमें समझना पड़ेगा कि depolarization क्या है. But before understanding depolarization, let us come back that what are the substances that are present inside the nerve cell and what are those which are present in the extracellular fluid. So the nerve cell is surrounded by extracellular fluid. ECF मतलब extracellular fluid है, that consists of extracellular fluid consists of large amount of Na plus bicarbonates. These are the two most important substances. मतलब एक नर्व सेल है तो नर्व सेल के सराउंडिंग भी जो फ्लूइड होता है उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक सेल के सराउंडिंग फ्लूइड होता है उसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या तो फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। अब ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में मेनली क्या होता है? तो मेनली होता है Na+ और बाइकार्बोनेट्स एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ CO2। क्यों? क्योंकि जब सेल मेटाबॉलिज्म करता है तो CO2 प्रोड्यूस होता है, राइट? तो CO2 एज अ वेस्ट मटेरियल, राइट? देयर विल बी आल्सो प्रेजेंस ऑफ सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन को सेल के अंदर देना है तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे जो सेल को नरिशमेंट के लिए जरूरी है। तो इन शॉर्ट एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में देयर इज अबंडेंट अमाउंट ऑफ NaCl, bicarbonates, carbon dioxide, some metabolic waste, some oxygen will be present in the extracellular fluid. Okay, within the nerve cell, there is presence of K+ and magnesium as well as negatively charged protein। सेल के अंदर क्या होता है? तो नर्व सेल के अंदर मेनली होता है पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। तो मान लीजिए कि ये एक नर्व सेल है, राइट? उसका एक्सॉन है, हम पूरा नर्व सेल नहीं बता रहे, इस तरफ डेंड्राइट्स आएगा, इस तरफ एक्सॉन टर्मिनल आएगा, ये एक्सॉन है तो इसको हम लेबल कर देते हैं एक्सोप्लाज्म, ठीक है? एक्सोप्लाज्म मतलब एक्सॉन का साइटोप्लाज्म मतलब एक्सोप्लाज्म, और इसके बाहर हम मेंशन क्या कर देंगे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। सो व्हाट आई एम सेइंग कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ज्यादा क्या है? Na+ और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड मतलब एक्सोप्लाज्म में there is presence of large amount of K+ as well as negatively charged proteins। और ये जो है this is the plasma membrane of the axon, ठीक है? तो ये हम कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और अंदर मतलब विद इन द सेल दोनों जगह पे अलग अलग मिनरल्स मतलब Na+ प्रेजेंट है, K+, तो ये एक डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस इन द चार्जेस across the membrane. There is difference in the charges across the membrane because the number of Na+ outside are very much abundant and number of K+ and negatively charged proteins are abundant within the cell. So this difference in the charges
is known as differential permeability of the nerve cell. And this differential permeability of the nerve cell is important for generating an electric field. It is important for generating an electric field. क्या इसे कहा जाता है? डिफरेंशियल परमिएबिलिटी. डिफरेंशियल परमिएबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पे मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो चार्जेस में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी डिफरेंस की वजह से नर्व इंपल्स का कंडक्शन पॉसिबल है. The conduction of the nerve impulse is possible just because of differential permeability. So conduction of nerve impulse involves two phases. Conduction of impulse involves two stages. नर्व इंपल्स के कंडक्शन में दो स्टेजेस आते हैं. एक आता है रेस्टिंग पोटेंशियल और दूसरा आ जाता है एक्शन पोटेंशियल. हम इन दोनों के बारे में अब आगे बात करेंगे. नर्व इंपल्स के कंडक्शन के लिए ये जो डिफरेंस है चार्जेस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इंपल्स के जब हम कंडक्शन की बात कर रहे हैं तो कंडक्शन में दो स्टेजेस आते हैं. एक आता है रेस्टिंग पोटेंशियल और एक आता है एक्शन पोटेंशियल. तो पहले हम बात कर देते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल की. दैट व्हाट इज द रेस्टिंग पोटेंशियल? The resting potential is also known as polarized membrane. Resting potential को और एक नाम दिया गया है polarized membrane. Polarized membrane का मतलब क्या है? तो हमने यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाया है, that represents our resting potential of the nerve cell. Resting potential मतलब जब भी कोई impulse travel नहीं कर रहा, right? तो इम्पल्स जब ट्रैवल नहीं कर रहा तो एक नर्व सेल आइडियल कंडीशन में ऐसे ही स्टेज में होता है कि Na+ बाहर और K+ अंदर. इस कंडीशन को रेस्टिंग पोटेंशियल कहा जाता है, राइट? सो रेस्टिंग पोटेंशियल और पोलराइज्ड मेम्ब्रेन मींस द प्रेजेंस ऑफ Na+ outside the cell and K+ inside the cell is called resting potential and the membrane is called as a polarized membrane. The membrane over here is known as a polarized membrane. आइडियल कंडीशन में जब Na+ सेल के बाहर और K+ सेल के अंदर है तो ये जो डिफरेंस हुआ परमिएबिलिटी का, चार्जेस का, इसे कहा जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. रेस्टिंग मेम्ब्रेन मतलब कोई इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रहा, अभी नर्व सेल रेस्ट में है और इसीलिए ऐसे चार्जेस जो है उनमें डिफरेंस हो गया है, बाहर Na+ और अंदर K+. इसे रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं और ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पोलराइज्ड मेम्ब्रेन कहते हैं. ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन कौन करता है? तो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन को इट इज मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप. हु मेंटेन्स दिस मेम्ब्रेन? सोडियम पोटेशियम पंप. ये पंप जो है वो ऑब्वियसली हमने पहले भी पढ़ा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये जो है वो पंप करता है 3Na+ आउटसाइड एंड 2K+ इनसाइड द सेल. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन को मेंटेन करने का मतलब क्या हुआ कि Na+ बाहर रहना चाहिए और K+ अंदर.
इसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन को मेंटेन करना कहते हैं। तो मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, तो मेंटेन करने के लिए एक पंप है। पंप जो करता है काम, वो क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ पे 3Na+ को बाहर भेजता है और 2K+ को अंदर भेजता है, और इसी की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है नर्व सेल की, वो बाहर ज्यादा पॉजिटिव है और अंदर कम पॉजिटिव है। इसीलिए हम लिखते हैं कि इनसाइड इट इज नेगेटिवली चार्ज बट आउटसाइड इट इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट। तो ये जो डिफरेंस है, 3Na+ को बाहर भेजा और 2K+ को अंदर भेजा, तो ऑब्वियसली बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस जाने वाले, और ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस जाने की वजह से outside the membrane is known to be positive and inside is known to be negative, and this difference of positive and negative charges is going to generate an electric field for the conduction of the nerve impulse. तो resting membrane में लाने का काम कौन करता है, या मेंटेन करने का काम कौन करता है, सोडियम पोटेशियम पंप, क्योंकि हर बार वो Na+ को बाहर पंप आउट करता है और K+ को अंदर पंप करता है, और इसीलिए ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहला जाता है, और इस मेम्ब्रेन को पोलराइज्ड मेम्ब्रेन कहते हैं। अब बात करते हैं कि इंपल्स आने पर क्या होता है। एक स्टिम्युलस होना चाहिए इंपल्स जनरेट होने के लिए। स्टिम्युलस मतलब मैंने पहले भी कहा था, एक्सटर्नल स्टिम्युलस या इंटरनल। बाहर बहुत ठंडी है, right, so you immediately get an impulse to wear a sweater or jacket, right. So who is getting sensitized over here, your skin, and it is passing the message to the brain that now it is the time to wear a jacket, right. तो ये है एक इम्पल्स जनरेट होना, और इम्पल्स कब जनरेट होगी, तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा स्टिम्युलस मिलेगा तो ही इम्पल्स जनरेट होगी। सो व्हेन अ थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस रीचेस the nerve cell, right, of any part, right, skin है, अपने sense organ से कोई भी sense organ है, and then begins the nerve impulse, and that is the concept of the action potential which we are going to talk next. Good morning, dear students. Students, in the previous class, we have already talked about the central nervous system and the peripheral nervous system. We have talked in brief that peripheral nervous system was further divided into the somatic and the autonomic nervous system, which was autonomic nervous system further divided into sympathetic and parasympathetic nervous system. So after discussing about the in brief about the nervous system, we have also discussed about the structure of the nerve cell. एक nerve cell में कौन से parts होते हैं, what is the role of different regions in the nerve cell, that was discussed by us in the previous class. Now we are moving on to a very important topic in this chapter, and that is generation and the conduction of the nerve impulse. स्टूडेंट्स, नर्व इम्पल्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो शायद आपने कई बार सुना भी होगा, दैट from our brain there is a message which passes to the different organs of our body to do their work, right. For example, अगर आपको कुछ बोलना है तो इसके लिए जो स्पीच के लिए जो टर्मिनोलॉजीज के लिए जो सिग्नल मिलने वाला है, that is being obtained from the message or the impulse which is obtained from the nervous system, that is your brain or your spinal cord, to your particular muscles of your tongue. So what I am trying to say is that every activity in our body depends upon this impulse which is being received, and therefore if the impulse is not received, that particular function is not going to occur. But when we use the word impulse again and again, what do we actually mean by a nerve impulse? So we are going to begin with the meaning of nerve impulse. So nerve impulse, the nerve impulse is a wave of depolarization that runs across
a nerve cell membrane. What is a nerve impulse? Nerve impulse को कहा जाता है एक वेव है, a wave of depolarization. अब इसके लिए ये भी समझना पड़ेगा that what is the meaning of depolarization. But an impulse runs through what? It is going to travel from one nerve cell to the another. मतलब एक nerve cell की plasma membrane से लेके दूसरे nerve cell की plasma membrane तक ये nerve impulse जो है वो conduct होने वाला है. However, the impulse conduction is so rapid process that within a millisecond there will be hundreds of impulses that are going to run along that nerve cell. So conduction of the nerve impulse is going to be very rapid, right? So here it is a wave of depolarization that runs across the nerve cell membrane, right? It is conducted from one nerve cell to another through or you can say across a synapse, or from one neuron to other effector organ. कहाँ पे कंडक्ट होने वाली है ये इम्पल्स? इम्पल्स तो है, इम्पल्स कंडक्ट होने वाली है, ट्रैवल होने वाली है. तो ट्रैवल कहाँ पे होने वाली है? तो आइदर इट विल ट्रैवल फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर. ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से एक नर्व सेल स्टार्ट हो रहा है, द अनदर नर्व सेल, द थर्ड नर्व सेल, राइट? सो इट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर. तो एक नर्व सेल और दूसरे नर्व सेल के बीच में जो गैप होती है, जो फिजिकल डिस्टेंस होता है, उसे क्या कहा जाता है? साइनैप्स कहा जाता है. तो आइदर इट विल ट्रैवल अक्रॉस द साइनैप्स, और यू कैन से इट विल ट्रैवल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द इफेक्टर ऑर्गन. यहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन मतलब हर बार जरूरी नहीं है कि इम्पल्स जो लास्ट न्यूरॉन है वहां से कहाँ जाएगा? टू द मसल और टू अ ग्लैंड और टू अ ऑर्गन, राइट? तो कोई मसल या कोई ऑर्गन पे जब ये इम्पल्स पहुंचता है तो उसे क्या कहा जाता है? इफेक्टर ऑर्गन. ये इफेक्टर ऑर्गन कोई भी हो सकता है, मसल हो सकता है, ग्लैंड हो सकता है, ठीक है? सो हियर 2 points I have mentioned. The first is कि एक इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स एक वेव है, एक वेव डीपोलराइजेशन की वेव है which will be traveling from one nerve cell to another through the plasma membrane of that nerve cell. And second, an impulse will be conducted from one nerve cell to another nerve cell or from a nerve cell to an effector organ, right? तो अब हम इस कंसेप्ट को समझते हैं. हमें समझना पड़ेगा कि depolarization क्या है. But before understanding depolarization, let us come back that what are the substances that are present inside the nerve cell and what are those which are present in the extracellular fluid. So the nerve cell is surrounded by extracellular fluid. ECF मतलब extracellular fluid है, that consists of extracellular fluid consists of large amount of Na plus bicarbonates. These are the two most important substances. मतलब एक नर्व सेल है तो नर्व सेल के सराउंडिंग भी जो फ्लूइड होता है उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक सेल के सराउंडिंग फ्लूइड होता है उसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या तो फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है. अब ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में मेनली क्या होता है? तो मेनली होता है Na+ और बाइकार्बोनेट्स एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ CO2. क्यों? क्योंकि जब सेल मेटाबॉलिज्म करता है तो CO2 प्रोड्यूस होता है, राइट? तो CO2 एज अ वेस्ट मटेरियल, राइट? देयर विल बी आल्सो प्रेजेंस ऑफ सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन को सेल के अंदर देना है तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा. न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे जो सेल को नरिशमेंट के लिए जरूरी है.
तो इन शॉर्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में देयर इज अबंडेंट अमाउंट ऑफ NaCl, bicarbonates, carbon dioxide, some metabolic waste, some oxygen will be present in the extracellular fluid. Okay, within the nerve cell, there is presence of K plus and magnesium as well as negatively charged proteins. सेल के अंदर क्या होता है? तो नर्व सेल के अंदर मेनली होता है पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। तो मान लीजिए कि ये एक नर्व सेल है, राइट, उसका एक्सॉन है, हम पूरा नर्व सेल नहीं बता रहे, इस तरफ डेंड्राइट्स आएगा, इस तरफ एक्सॉन टर्मिनल आएगा, ये एक्सॉन है, तो इसको हम लेबल कर देते हैं एक्सोप्लाज्म। ठीक है, एक्सोप्लाज्म मतलब एक्सॉन का साइटोप्लाज्म मतलब एक्सोप्लाज्म, और इसके बाहर हम मेंशन क्या कर देंगे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। सो व्हाट आई एम सेइंग कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ज्यादा क्या है? Na+, और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड मतलब एक्सोप्लाज्म में देयर इज प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ K+ as well as negatively charged proteins. और ये जो है दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन। ठीक है, तो ये हम कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और अंदर मतलब विद इन द सेल दोनों जगह पे अलग अलग मिनरल्स मतलब Na+ प्रेजेंट है, K+, तो ये एक डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस इन द चार्जेस across the membrane. There is difference in the charges across the membrane because the number of Na+ outside are very much abundant and number of K+ and negatively charged proteins are abundant within the cell. So this difference in the charges is known as differential permeability of the nerve cell, and this differential permeability of the nerve cell is important for generating an electric field. It is important for generating an electric field. क्या इसे कहा जाता है? डिफरेंशियल परमिएबिलिटी। डिफरेंशियल परमिएबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पे मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो चार्जेस में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस इतना इम्पोर्टेंट है कि इसी डिफरेंस की वजह से नर्व इम्पल्स का कंडक्शन पॉसिबल है। The conduction of the nerve impulse is possible just because of differential permeability. So conduction of nerve impulse involves two phases. Conduction of impulse involves two stages. नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में दो स्टेजेस आते हैं। एक आता है रेस्टिंग पोटेंशियल और दूसरा आ जाता है एक्शन पोटेंशियल। हम इन दोनों के बारे में अब आगे बात करेंगे। नर्व इम्पल्स के कंडक्शन के लिए ये जो डिफरेंस है चार्जेस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इम्पल्स के जब हम कंडक्शन की बात कर रहे हैं तो कंडक्शन में दो स्टेजेस आते हैं। एक आता है रेस्टिंग पोटेंशियल और एक आता है एक्शन पोटेंशियल। तो पहले हम बात कर देते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल की, दैट व्हाट इज द रेस्टिंग पोटेंशियल। The resting potential is also known as polarized membrane. Resting potential को और एक नाम दिया गया है पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। पोलराइज्ड मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? तो हमने यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाया है,
that represents our resting potential of the nerve cell. रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब जब भी कोई इम्पल्स ट्रैवल नहीं कर रहा, राइट, तो इम्पल्स जब ट्रैवल नहीं कर रहा तो एक नर्व सेल आइडियल कंडीशन में ऐसे ही स्टेज में होता है कि Na+ बाहर और K+ अंदर। इस कंडीशन को रेस्टिंग पोटेंशियल कहा जाता है, राइट। सो रेस्टिंग पोटेंशियल और पोलराइज्ड मेम्ब्रेन मींस द प्रेजेंस ऑफ Na+ outside the cell and K+ inside the cell is called resting potential, and the membrane is called as a polarized membrane. The membrane over here is known as a polarized membrane. आइडियल कंडीशन में जब Na+ सेल के बाहर और K+ सेल के अंदर है तो ये जो डिफरेंस हुआ परमिएबिलिटी का, चार्जेस का, इसे कहा जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन मतलब कोई इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रहा, अभी नर्व सेल रेस्ट में है और इसीलिए ऐसे चार्जेस जो है उनमें डिफरेंस हो गया है, बाहर Na+ और अंदर K+। इसे रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं और ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पोलराइज्ड मेम्ब्रेन कहते हैं। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन कौन करता है? तो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन को इट इज मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप। हु मेंटेन्स दिस मेम्ब्रेन? सोडियम पोटेशियम पंप। ये पंप जो है वो ऑब्वियसली हमने पहले भी पढ़ा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो है वो पंप करता है 3Na+ आउटसाइड एंड 2K+ इनसाइड द सेल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन को मेंटेन करने का मतलब क्या हुआ कि Na+ बाहर रहना चाहिए और K+ अंदर। इसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन को मेंटेन करना कहते हैं। तो मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? तो मेंटेन करने के लिए एक पंप है। पंप जो करता है काम, वो क्या करता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ पे 3Na+ को बाहर भेजता है और 2K+ को अंदर भेजता है और इसी की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है नर्व सेल की, वो बाहर ज्यादा पॉजिटिव है और अंदर कम पॉजिटिव है। इसलिए हम लिखते हैं कि इनसाइड इट इज नेगेटिवली चार्ज बट आउटसाइड इट इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट। तो ये जो डिफरेंस है, 3Na+ को बाहर भेजा और 2K+ को अंदर भेजा, तो ऑब्वियसली बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस जाने वाले और ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस जाने की वजह से outside the membrane is known to be positive and inside is known to be negative, and this difference of positive and negative charges is going to generate an electric field for the conduction of the nerve impulse. तो resting membrane में लाने का काम कौन करता है या मेंटेन करने का काम कौन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप, क्योंकि हर बार वो Na+ को बाहर पंप आउट करता है और K+ को अंदर पंप करता है और इसीलिए ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहला जाता है और इस मेम्ब्रेन को पोलराइज्ड मेम्ब्रेन कहते हैं। अब बात करते हैं कि इम्पल्स आने पर क्या होता है। एक स्टिम्युलस होना चाहिए इम्पल्स जनरेट होने के लिए। स्टिम्युलस मतलब मैंने पहले भी कहा था, एक्सटर्नल स्टिम्युलस या इंटरनल। बाहर बहुत ठंडी है, right? So you immediately get an impulse to wear a sweater or jacket, right? So who is getting sensitized over here? Your skin, and it is passing the message to the brain that now it is the time to wear a jacket, right? तो ये है एक इम्पल्स जनरेट होना। और इम्पल्स कब जनरेट होगी? तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा स्टिम्युलस मिलेगा तो ही इम्पल्स जनरेट होगी। सो व्हेन अ थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस रीचेस the nerve cell, right, of any part, right, skin है, अपने sense organs है, कोई भी sense organ है, and then begins the nerve impulse, and that is the concept of the action potential which we are going to talk next.